بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک انتہائی عجیب مقدمہ آیا تو آپ نے یہ مقدمہ ایک قاضی ابن تواب کی دور اندیشی اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اس کے پاس بھجوا دیا۔ قاضی ابن تواب کے سامنے ایسے 3 نوجوانوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ایک نے قصاب کی نابینا لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جبکہ باقی 2 نے اپنے دوست کی خاطر اس لڑکی کو ورگلایا۔ تینوں ایک ہی کمرے میں لڑکی کے ساتھ پکڑے گئے اور پکڑے جانے کے بعد ہر ایک شخص باقی 2 پر الزام لگا رہا تھا کہ میں تو بے گناہ ہوں، انہوں نے ہی لڑکی کو بے آبرو کیا ہے۔ ان کو بہت مارا گیا، لیکن اس کے باوجود کسی نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا اور اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ان تینوں میں سے ایک ہی تھا، لیکن چونکہ وہ نابینا تھی اس لیے اس شخص کی پہچان نہ کر پائی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کو قاضی ابن تواب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی بھی جب اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے قصاب کی نابینا بیٹی کے باپ کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جیسے چاہو اپنی بیٹی کا بدلہ لے لو۔ قصاب نے ایک تیز دھار خنجر لیا اور کہا کہ میں ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ساری زندگی ذلت میں گزار دیں۔ قاضی کی بیٹی نے جب یہ سنا تو قصاب کے اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ اصل مجرم کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ مجرم کی شناخت کے لیے وہ عدالت میں ایک بکرے کو لائی۔ جب قاضی ابن تواب نے اس بکرے کو دیکھا تو اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ بکرا کیسے ثابت کرے گا کہ ان تینوں میں سے تمہارے ساتھ بدکاری کس نے کی ہے؟ تو یہ اندھی لڑکی کہنے لگی کہ قاضی صاحب، یہ کوئی عام بکرا نہیں ہے، یہ ایسا بکرا ہے کہ جس نے اپنی ماں کی بجائے ایک کتیا کا دودھ پیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کی بات ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کے 3 نوجوان قاسم ابن نذیر، خالد ابن جمال اور عباس ابن یعقوب تینوں ہم سفر اور بچپن کے دوست تھے۔ تینوں میں سے ایک دوست کو قصاب کی ایک نابینا لڑکی پسند آئی۔ اس نے لڑکی کو شادی کی پیشکش بھی کی، لیکن لڑکی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنی باقی 2 دوستوں کی مدد سے لڑکی کو ورگلایا اور پھر ایک ویران کھنڈر میں لے گئے۔ وہاں اس نے لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ وہاں کھنڈر میں موجود تھے کہ ایک بزرگ نے لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی اور بھاگتا ہوا آیا تو وہ تینوں اپنے کپڑے درست کر رہے تھے۔ جب لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، لیکن چونکہ میں نابینا ہوں لہذا میں اس لڑکے کو نہیں پہچان سکتی جو میرا مجرم ہے۔ سپاہیوں کی مدد سے ان تینوں کو گورنر شہر کے پاس پیش کیا گیا۔ شہر کے گورنر نے ان تینوں سے کہا کہ مجرم خود اپنے آپ کو میرے حوالے کرے اور جرم کا اعتراف کرے تو بہتر ہے۔ عباس کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا تھا، جب میں ادھر آیا تو خالد اور قاسم اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھے۔ میں نے ان دونوں درندوں کو لڑکی سے الگ کیا اور یہ بزرگ اچانک کھنڈر میں آیا۔ اس نے ہم تینوں کو دیکھ لیا اور گناہ گار جانا۔ میں بے قصور ہوں، جبکہ یہ دونوں ہی لڑکی کے گناہ گار ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کس نے لڑکی کو بے آبرو کیا اور کون اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ خالد نے سنا تو کہا یہ جھوٹ ہے،
कासिम और अब्बास लड़की को इस वीराने में ले गए थे। जब मैं उन्हें तलाश कर रहा था तो मुझे भी बेगुनाह इनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम ने भी इसी तरह की कुछ बातें की और बाकी अपने दोनों दोस्तों पर इल्जाम लगाया। शहर के गवर्नर के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था, लिहाजा उसने तीनों को काजी इब्ने तव्वाब की अदालत में पेश करने का फैसला किया। काजी उस वक्त अदालत में मौजूद न था, तो उसने तीनों को अपने घर ही दावत पर बुलाया। तीनों हैरान हुए कि एक काजी का यूं अपने घर पर दावत पर बुलाने का आखिर मकसद क्या है। खैर, वो दावत पर काजी के घर पहुंचे तो दस्तरखान उनके लिए बिछाया गया और 3 किस्म के खाने पेश किए गए। खालिद को चावल पेश किए गए, कासिम को गोश्त, जबकि अब्बास को अंडे का हलवा खिलाया गया। खालिद ने जैसे ही चावल अपने मुंह में डाले तो फौरन थूक दिया और चावल बाहर निकाले। काजी ने वजह पूछी तो उसने कहा कि इन चावलों में इंसानी गोश्त की बू आ रही है, लिहाजा मुझसे बर्दाश्त ना हो सका कि मैं ये चावल खाऊं। कासिम ने पहला लुकमा गोश्त का जब मुंह में डाला तो लुकमा निकल ना सका और बाहर निकाल लिया और कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बकरे का गोश्त है, बल्कि ये तो कुत्ते का गोश्त है। अब्बास जब अंडे का हलवा खाने लगा तब उसने भी खाने से इनकार कर दिया। काजी ने जब उससे भी वजह पूछी कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तो अब्बास ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये अंडे का हलवा जिस शख्स ने तैयार किया है वो अपने बाप की नाजायज औलाद है और उसने पानी की जगह गधे का पेशाब मिक्स किया है और उसके हाथ से तो मैं खाना नहीं खा सकता। काजी इन तीनों की बात सुनकर हैरान हुआ और कहा कि पिछले मुकदमे का फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारी इस बात की तस्दीक जरूर करूंगा और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो अलग सजा मिलेगी। सबसे पहले काजी उस दुकानदार के पास गया जहां से उसने चावल खरीदे थे। काजी ने उस दुकानदार से कहा कि तुमने ये चावल कहां से लिए। दुकानदार ने एक काश्तकार का नाम लिया कि मैंने चावल उससे लिए थे। काजी ने उससे पूछा कि तुमने ये चावल कहां से लिए, तो उस काश्तकार ने बताया कि पुराने कब्रिस्तान की जमीन काफी अरसे से वीरान पड़ी थी और उस पर काफी पानी जमा था, हत्ता कि कब्रें नजर आ रही थी। मैंने उस पर चावल बो दिए। काजी ने दिल में सोचा कि खालिद ठीक कह रहा था। वो समझ चुका था कि वो क्यों कह रहा था कि चावलों में से इंसानी गोश्त की बू आ रही है। उसके बाद काजी ने कसाब को बुलाया जिससे उसने गोश्त खरीदा। काजी ने कसाब से पूछा कि सच सच बताना, मुझसे गलत बयानी न करना कि जो गोश्त तुमने मुझे फरोख्त किया ये किस चीज का था। कसाब ने कहा, जनाब ये बकरे का गोश्त था। काजी ने कसाब से कहा, अच्छा जहां से तुमने ये बकरा खरीदा मुझे उस घर का पता बता सकते हो। उसने एक देहाती का पता बताया। देहाती ने जब अचानक काजी को सामने देखा तो खौफ ज़दा हुआ। काजी ने उसे तसल्ली दी और फिर कहा कि खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। क्या तुमने अपना बकरा उस कसाब को फरोख्त किया था? देहाती ने कहा, जी हां, मैंने अपना बकरा ही फरोख्त किया था। काजी ने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उस कसाब को कुत्ता फरोख्त किया था और उसने वो कुत्ता ज़िबा करके हमारे मेहमानों को खिला दिया। देहाती अपने कानों को हाथ लगाने लगा और कहा, काजी साहब खुदा का खौफ करें, मैं ऐसा जुर्म कैसे कर सकता हूं? पूरा इलाका मेरी इस बात की गवाही देगा
कि मैंने कसाब को अपना बकरा ही फरोख्त किया था। काजी ने कहा, फिर मेरे मेहमान ने ऐसा क्यों कहा कि यह गोश्त मुझे कुत्ते का मालूम होता है। देहाती कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जनाब अगर इजाजत हो तो मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब यह बकरा पैदा हुआ था तो उसकी माँ मर गई थी। मैं परेशान हुआ क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था और इस बच्चे की खुराक सिर्फ दूध ही थी। एक दफा मैं घर आया तो मैंने देखा कि एक कुतिया इस बकरे को दूध पिला रही है। मैं खड़ा देखता हैरान रह गया। मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं उस बकरी के बच्चे को जिंदा रखना चाहता था। लिहाजा बचपन से ही उसको उस कुतिया ने पाला। बाद में जब ये बड़ा हुआ तो उसी कुतिया के साथ बैठता, कुतिया से चाटती, प्यार करती। गांव के काफी लोगों ने इस बात पर एतराज किया कि एक नजिस जानवर के साथ तुमने हलाल जानवर क्यों मिला दिया। आखिरकार तंग आकर मैंने ये बकरा कसाब को फरोख्त कर दिया, लेकिन उसको हकीकत ना बताई। काजी समझ चुका था कि क्यों कासिम को इस गोश्त में से कुत्ते की बदबू आ रही थी। काजी दिल में सोचने लगा, ये तीनों शख्स मुजरिम होने के अलावा बला के ज़हीन हैं, लिहाजा असल मुजरिम की शनाख्त बहुत मुश्किल मामला है। अब काजी ने कासिम का सच मालूम करने की कोशिश की। काजी ने अपने उस बावर्ची को बुलाया जिसने अंडे का हलवा तैयार किया और कहा कि मुझे अपने वालिदैन के पास ले जाओ। बावर्ची ने काजी को बताया कि मेरा बाप तो बचपन से ही फौत हो चुका है, लेकिन मेरी माँ अभी जिंदा है। वो काजी को अपनी माँ के पास ले गया। काजी ने उसकी माँ से पूछा कि सच सच बताओ, ये बेटा तुम्हारा है? उसकी माँ ने इस बात का इकरार किया कि जंगल में लकड़ियां काट रही थी, कुछ अबाश डाकू आए, उन्होंने मुझे बेआबरू किया। मैं शादीशुदा थी जबकि मेरा शौहर उस वक्त तजारती सफर पर था। उन नौजवानों की वजह से मैं हामला हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये राज किसी को ना बताया कि ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा ये बेटा आपके यहाँ बावर्ची है, ये मेरे शौहर के नुतफे से नहीं। अब कासिम की बात की भी तस्दीक हो चुकी थी। काजी बहुत हैरान था कि तीनों अगर इतने ज़हीन हैं, फिर इन्होंने ये गलत काम क्यों किया। काजी वापस घर आया, तीनों से कहा कि बेहतर यही है कि मुजरिम खुद अपने आप को कानून के हवाले करे, वरना मैं तीनों को ही फांसी की सजा दे दूंगा। मगर यहाँ भी वो तीनों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे ताकि काजी इब्न तव्वाब शक का शिकार हो जाए और फैसला ना कर पाए और असल मुजरिम की शनाख्त ना हो सके। काजी तीनों को अदालत में ले गया और उसके बाद कसाब और उस लड़की को भी पेश होने का हुक्म दिया। एक तरफ मजलूम लड़की और उसका बाप खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ तीनों मुलजम खड़े थे। काजी ने देखा कि कसाब का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें भी सुर्ख थीं। काजी ने कसाब से कहा कि ये तीनों ही तुम्हारी बेटी के मुजरिम हैं, लिहाजा जैसे चाहो इनको सजा दो और अपनी मजलूम बेटी का बदला ले लो। कसाब ने कहा कि मैं इन तीनों को सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि ये तीनों इबरत का निशान बन जाएंगे। मैं इनको मारूंगा नहीं, बल्कि इन तीनों के नफ्स काट लूंगा ताकि फसाद की जड़ ही खत्म हो जाए और दोबारा ये किसी की बहन बेटी की इज्जत पामाल ना कर सके। ये जिंदा ही रहेंगे, लेकिन जिल्लत और रुसवाई के अलावा इनकी किस्मत में और कुछ नहीं होगा। कसाब ने एक खंजर तेज धार आले पर रखा और तेज करने लगा। काजी की अक्लमंद बेटी ने जब कसाब के इरादे को देखा तो कहा कि ये गलत है। जो सजा उस कसाब ने इन तीनों के लिए तजवीज की है वो असल मुजरिम को ही मिलनी चाहिए।
काजी ने बेटी से कहा, बेटी लेकिन मेरे लिए असल मुजरिम की शनाख्त करना मुश्किल हो चुका है, और लड़की भी नामीना थी, वो भी अपने मुजरिम को नहीं पहचान सकती थी। काजी की लड़की ने कहा कि आप उस देहाती के पास जाएं जिसने अपना बकरा इस कसाब को फरोख्त किया था। दरअसल उसके पास 2 बकरे थे, जिसमें से एक बकरा उसने छुपा लिया था, वो भी बचपन में कुतिया के दूध पर पला था। वो बकरा ही इनमें से मुजरिम की शनाख्त करवाएगा। वो बकरा अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उसको एक तारीक कमरे में खड़ा किया गया। तीनों से कहा गया कि बारी बारी जाकर उस बकरे के सींगों को हाथ लगाएं। जब मुजरिम उसके सींगों को हाथ लगाएगा तब बकरा एक अजीब सी आवाज निकालेगा जो कुत्ते से मिलती जुलती होगी। तीनों कमरे में गए और बकरे के सींगों को हाथ लगाकर वापस आ गए। फिर लड़की ने एक सिपाही से कहा कि इन तीनों के हाथों को सूंघो। सिपाही ने तीनों के हाथों को सूंघा और फिर काजी की बेटी को बताया कि तीनों के हाथों से एक अजीब किस्म की खुशबू महसूस हो रही है। यह सुनकर काजी की बेटी काफी परेशान हो गई। बाप ने अपनी बेटी को परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी। उसकी बेटी ने बाप को बताया कि मैंने बकरे के सींगों पर एक खास किस्म की खुशबू लगाई थी और फिर इन तीनों को उनके सींगों पर हाथ लगाने को कहा। मेरे दिल में था कि जो असल मुजरिम होगा वो तारीकी का फायदा उठाते हुए बकरे के सींगों को नहीं छुएगा ताकि उसका जुर्म पकड़ा ना जाए। मगर हैरत की बात तो ये है कि इन तीनों ने उसके सींगों को हाथ लगाया जैसे कि ये पहले ही मेरे मंसूबे को जानते थे और ये जानते थे कि ये मेरे दिमाग में क्या है और मैं किस तरह इन तीनों में से असल मुजरिम को पकड़ना चाह रही हूँ। ये तीनों बहुत चालाक और शातिर लोग हैं। काजी ने जब ये सुना तो कहा, बेटी फिर मेरे फैसले के दरमियान हायल क्यों हुई हो कि सामने खड़े शख्स की बेटी के मुजरिम है और बेटी के बाप ने खुद इन तीनों के लिए सजा भी तजवीज कर ली है, तो फिर देर किस बात की है? इनको इनका काम करने दीजिए। काजी की बेटी ने कहा, अब्बा जान आप जानते हैं जब भी कभी ऐसा पेचीदा मसला होता है मैं हमेशा से आपकी मदद करती रही हूँ। अल्लाह के फजल से मैंने कभी भी आपको मायूस नहीं किया। मैंने हमेशा आपकी मदद की और मुजरम की शनाख्त के लिए मदद की, मगर आज इन तीनों ने मुझे नाकाम करने की कोशिश की। आप मुझे वक्त दीजिए, मैं जालिम शख्स की शनाख्त करने में जरूर कामयाब हो जाऊंगी जिसने इस नाबीना लड़की को भी ना बख्शा। काजी ने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम बेहतर समझो और जैसा तुम चाहो, मगर याद रखना हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हकीकत मालूम हो सके ताकि फैसला करने में आसानी हो। काजी की बेटी ने बाप से कहा कि मैं इन तीनों को एक मुख्तसर सी कहानी सुनाना चाहती हूँ और कहानी सुनने के बाद मैं इस बात का दावा करती हूँ कि मुजरिम अपने मुंह से अपने गुनाह का एतराफ करेगा। बेटी की बात सुनकर काजी हैरान हुआ। लड़की ने उन तीनों दोस्तों को अपने सामने बैठाया और उनको एक कहानी सुनाई। लड़की ने कहा कि आज से 25 साल पहले बगदाद में 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अदनान जबकि दूसरे का नाम इदरीस था। दोनों की दोस्ती थी और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते पढ़ते हत्ता के जवान हुए। हैरत की बात तो ये थी कि अगर एक दोस्त को बुखार भी हो जाता तो दूसरे की तबीयत खुद ब खुद खराब होती। अदनान का बाप एक मशहूर मुसव्विर था
और अपने बाप को देखते हुए अदनान को भी मुसव्वरी का शौक था। इस्कंदरिया में हर साल एक मेला लगता था जिसमें ईरान, तुर्की, लेबनान, मुख्तलिफ इलाकों के लोग जमा होते। उन लोगों में शमशीर जन ताजर हजरात भी शिरकत करते। हसीन और जमील लड़कियां रक्स करती और इसी तरह लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी होती थी। शमशीर जन अपनी शमशीर जनी के जौहर सबके सामने पेश करते। रात के वक्त आंखों को खैरा करने वाली रोशनियां इंसान को मदहोश कर देती थी। अमीरों कबीर लोग अपने हुजरे में बैठ जाते। खूबसूरत लड़कियां उनके सामने रक्स करती। इसी मेले में मुसव्वर उमर, जो अदनान का बाप था, अपनी दुकान लगाता, अपनी मुसव्वरी के आला शाहकार लोगों के सामने रखता। देखते ही देखते उसकी तस्वीरें फरोख्त हो जाती। एक दफा मुसव्विर उमर सख्त बीमार था। उसने अपने बेटे अदनान से कहा, मेरी जगह आज तुम दुकान पर ठहरना, ग्राहकों का बहुत ज्यादा रश होगा, लिहाजा तुमने ही उनको डील करना है। अदनान अपने बाप की दुकान पर बैठा था कि उसका दोस्त इदरीस परेशानी की हालत में उसके पास आया। अदनान ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो इदरीस ने बताया कि मैंने मेले में एक लड़की देखी, वो एक शहजादी थी और उस शहजादी के साथ एक कनीज भी थी। वो एक परी चेहरा लड़की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अदनान ने जब अपने दोस्त को परेशान देखा तो अपने बाप की दुकान बंद की और अपने दोस्त के साथ उस परी चेहरा लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन दोनों दोस्तों ने उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरा इलाका छान मारा। हर गली में गए मगर लड़की ना मिल सकी। दूसरे दिन वो मेले में उस लड़की को तलाश करने के लिए फिर से निकल पड़े, लेकिन फिर भी वो लड़की उन्हें ना मिल सकी। अब 10 रोजा मेला खत्म हो चुका था, लड़की ना मिली और इदरीस बेहद परेशान था। तो उसके दोस्त अदनान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी जान हो। उस लड़की का हुलिया बताओ, मैं उसकी तस्वीर बना लेता हूँ। इदरीस ने लड़की का हुलिया बताया तो अदनान ने अपने हाथों से उस लड़की की तस्वीर तैयार की। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो इदरीस ने कहा कि इस तस्वीर में 2 खामियां हैं, निचले होंठ के साथ तिल नहीं और लड़की की जुल्फें कुछ ज्यादा लंबी थी। अदनान ने तस्वीर में दोनों चीजें लगा दी तो इदरीस चीख उठा कि ये हूबहू उसी लड़की की तरह है। अदनान ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक मैं इस लड़की को तलाश नहीं कर लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा और तुम्हारी इस लड़की से शादी करवा कर ही दम लूंगा। अगले दिन अदनान ने अपने घर को खैरबाद कहा और अपने दोस्त को अलविदा कहते हुए लड़की की तस्वीर को जेब में रखा और उसकी तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने हर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन लड़की ना मिल सकी। दिन रात वो लड़की को तलाश करता रहा और साथ साथ अपने दोस्त के बारे में खैरियत भी दरियाफ्त करता रहा। उसे बताया गया कि उसका दोस्त सख्त बीमार है कि सुनकर वो भी बीमार पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद उसने लड़की की तलाश जारी रखी। हत्ता कि 1 साल का अरसा गुजर गया, लड़की ना मिली और 1 साल के बाद दोबारा इस्कंदरिया के उसी मेले का इनअकाद हुआ जहां इदरीस ने लड़की को पहली बार देखा था। अदनान अपने दोस्त की खातिर मेले में घूमने लगा कि शायद वो लड़की दोबारा मिल जाए, वो उसे देख ले, लेकिन वो लड़की ना मिली। अदनान के वालिदैन अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थे या अपने दोस्त की वजह से
इतना मजनू हो चुका है, इसकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। वो हैरान थे कि क्या कोई शख्स अपने दोस्त की खातर इतना भी जुनूनी हो सकता है कि उसे अपनी भूख प्यास अपने वालिदैन तक का एहसास ना हो। उन्होंने अपने बेटे अदनान को बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि अगर अदरीस को लड़की ना मिली तो वो मर जाएगा और मैं दोस्त की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपने वालिदैन को माजरत की और दोबारा लड़की की तलाश के लिए निकल पड़ा। वालिदैन ने सोचा कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसके दिमाग से इदरीस निकले और इसे एक अच्छी हम सफर लड़की मिल जाए। मुसव्विर उमर ने अपने बेटे अदनान के लिए एक लड़की पसंद की और उसकी शादी कराई। सुहाग रात जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो अदनान को झटका लगा। लड़की ने कहा, सरताज क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई। अदनान ने अपनी दुल्हन से कहा कि देखो, अगर एक शौहर होने के नाते मैं तुझसे कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुल्हन ने कहा, मैं हर वह बात जो खुदा और उसके रसूल की शरीयत के खिलाफ ना हो वो जरूर मानूंगी। अदनान ने दुल्हन से कहा, नहीं, जो मैं कहूंगा तुझे मानना पड़ेगा, वरना एक मासूम शख्स अपनी जान हार बैठेगा। वो मेरा दोस्त है। आज से 2 साल पहले उसने तुझे देख लिया था एक मेले में और तब से लेकर आज तक वो तुम्हारे इश्क में मुब्तला है, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। मैंने उससे वादा किया था जैसे ही तुम मिलोगी मैं तुझे अपने दोस्त के पास भेज दूंगा। खुदारा मेरी इस हालत पर रहम करो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और अपने दोस्त के यहाँ भेजना चाहता हूँ ताकि तुम उसके पास जा सको और उसकी जान बच जाए। दुल्हन ने कहा, ठीक है, मैं आपके दोस्त के पास जाती हूँ, लेकिन आप मुझे अभी तलाक मत दीजिएगा। जब मैं वहां पहुंच जाऊं तब ही तलाक दीजिएगा। अदनान ने कहा, ठीक है। दुल्हन ने जाने की तैयारी की, एक घोड़ा मंगवाया और आधी रात को अदरीस के बताए हुए पता पर चली आई। आधी रात का वक्त था। कुछ राहजन जंगल में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार उनकी तरफ आ रही है। उन्होंने लड़की का रास्ता रोका, लड़की को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने देखा कि जेवरात से लदी हसीनो जमील लड़की उनके सामने खड़ी है। सरदार ने उससे पूछा कि आधी रात को तुम यूं अकेली कहां जा रही हो? लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। इतनी हसीनो जमील दुल्हन आधी रात को अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं। दुल्हन ने बताया कि मैं आपको हकीकत तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि मैं किसी शख्स की जान बचाने की खातिर जा रही हूं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो वो मर जाएगा। सरदार ने जब ये सुना तो कहा कि मैंने भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली। ऐसा शिकार आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा। लड़की ने कहा, सरदार, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो 24 घंटे के अंदर वापस आपके पास आऊंगी और बहुत सारा माल और जेवरात लेकर आऊंगी। किसी की जिंदगी की खातिर अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। सरदार एक जानी था जो लगभग 100 से ज्यादा औरतों के साथ जना कर चुका था। उसने लड़की से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर तूने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब मेरे साथी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक छोड़ कर आएंगे। लड़की ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही आई थी और अकेली जाऊंगी। सरदार से वादा करने के बाद वो लड़की
अपना सफर जारी रखे हुए सुबह अदरीस के घर पहुंची। अदरीस ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जिसकी खातिर वो 2 साल जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, वो आज उसके सामने रूबरू खड़ी थी, और वो भी दुल्हन के रूप में। अदरीस ने उससे कहा कि ऐ हसीना, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। दुल्हन ने कहा कि आपको इस बात की कोई खुशी नहीं कि आपको आपकी खोई हुई मोहब्बत मिल चुकी है जो आपके सामने है। लेकिन अदरीस बाजिद रहा कि मुझे हकीकत बताओ। जब दुल्हन खामोश रही तब उसने एक खंजर उठाया और कहा कि अगर तुमने मुझे हकीकत नहीं बताई तो इसी खंजर से मैं अपनी जान ले लूंगा। तब दुल्हन ने उसे सारा माजरा बताया कि सुनकर अदरीस के दिल में अपने दोस्त अदनान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने दुल्हन से कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और अपने भाई के घर आई हो। तुम हरगिज अदनान से तलाक नहीं लोगी और वापस अपने शौहर के पास चली जाओ। जब दुल्हन वापस जाने लगी तब अदरीस ने कहा, भाई बहनों को खाली हाथ तो नहीं भेजते, इसलिए उसने बहुत सारे माल और जेवरात दुल्हन को दे दिए और कहा कि मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। मगर दुल्हन ने अकेले जाने की जिद की। उसके बाद वो घोड़े पर बैठी और माल और जेवरात समेत सरदार के पास आई। सरदार से कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। उसने सरदार के सामने अपने जेवरात और माल जो तोहफे में अदरीस ने दिए थे सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर दिया। सरदार ये देखकर हैरान हुआ कि कोई लड़की अपनी कौलो करार की इतनी भी पक्की हो सकती है। ये कोई आम लड़की नहीं जिसने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी तक को खतरे में डाल दिया और वापस हमारी तरफ आई। हालांकि वह बआसानी फरार भी हो सकती थी। लड़की की इस बहादुरी ने सरदार की जिंदगी बदल दी और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो। लड़की ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आपको जानने की क्या जरूरत है। लेकिन वो बाजिद रहा। जब लड़की ने सरदार को सारी दास्तान सुनाई तो वो मुतासर हुआ। उसने कहा, आज तुमने इस नापाक शख्स को बदल डाला। उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो, और अगर बेटी इतनी नेक हो तो उसके बाप को भी गुनाहों से बाहर आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार ने दुआओं से उस लड़की को वहां से रवाना किया और जेवरात और माल भी दे दिया। लड़की वापस अदनान के पास आई तो अदनान उसे देखकर हैरान हुआ। लड़की ने उसे सारा माजरा बयान किया तो अदनान सजदे में गिर गया। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। अब काजी की बेटी ने तीनों से बारी बारी सवाल किया कि असल कुर्बानी किसने दी। सबसे पहले कासिम ने कहा कि असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने अपने दोस्त से वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनकूहा बीवी तक को अपने दोस्त के पास भेज दिया। खालिद ने कहा, नहीं, असल कुर्बानी तो अदरीस ने दी है, जिसको अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी, लेकिन अपने दोस्त की खातिर उसने उसे अपनी बहन बना लिया। अब्बास ने कहा, नहीं, दरअसल असल कुर्बानी तो रहज़न डाकुओं के सरदार ने दी। वो दोनों आपस में दोस्त थे और दोस्ती की खातिर एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन डाकुओं के सरदार ने जो कि एक बदकिरदार था और लड़की को किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने अपने पेशे को भी छोड़ दिया और लड़की को अपनी बेटी बना लिया। काजी इब्न तव्वाब की बेटी ने अपने बाप से कहा, यही अब्बास ही असल मुजरिम है, इसका नफ्स काट कर इबरत का निशान बनाया जाए। अदालत में मौजूद
हर शख्स हैरान था और काजी ने बेटी से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि यह मुजरिम है। काजी की बेटी ने अपने बाप को बताया कि आदमी जिस आदत का मालिक होता है उसी खासियत के लोगों को पसंद करता है। अब्बास खुद जानी है, इसलिए उसने एक जानी सरदार को पसंद किया और उसकी तारीफ की, तो मैं इसके ज़हनी रुझान को समझ गई। बाद में अब्बास ने भी इस बात का इकरार कर लिया कि मैं ही असल मुजरिम हूँ और मैंने ही इसके नाबीनापन को देखते हुए इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, क्योंकि मैं जानता था कि इसको दिखाई नहीं देता और कभी भी ये मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में हर चालाक और तेज इंसान की निस्बत उससे भी ज्यादा कई लोग चालाक और तेज जहन हो सकते हैं। आखिर फिर भरी अदालत में काजी इब्न तव्वाब ने हुक्म दिया और मुजरिम का नफ्स काट लिया गया और उसे इबरत का निशान बनाया गया, जबकि उसके 2 दोस्तों को कैद में डाला गया और उन्हें 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई।